Is my screen visible to you all? Right? Hello everyone. Good evening to all. So today we are going to right, and in this chapter or in this session what we are going to discuss. Okay, first is already we have three to four methods we have discussed in the previous class, like right, like what are the methods? One is rationalization, factorization, and L'Hopital rule, right? L'Hopital rule and substitution method also. So four methods we have discussed in the last class, and also we'll solve some questions based on those methods in this class. And and also we'll learn some new methods in this class also, like binomial approximation method. One, then we'll learn how to solve the limit when the limit is tending to infinity, when the variable tending to infinity. And finally we'll learn what is sandwich theorem, so how we can solve the questions by using the sandwich theorem. So all these things we are going to cover in this session. So let's start with our homework questions. In the last class I gave you two questions as your homework. So how many of you solved those two questions? Let me know in the chat box. How many of you solved those? Did you solve or not? Okay. So let's start. So this is the first question. है ना? Let's see. Limit extending to 0 on root of 2 plus x minus root 2 divided by x. So already the method is mentioned on your screen, है ना? ये already दिया दे दिया गया है कि जो मेथड है ना, that is we'll use rationalization method here to solve this limit or to evaluate the limit, right? So how we can evaluate this limit? Can you tell me what is the answer? Can you tell me what is the answer for this question? फर्स्ट ऑफ ऑल ना, मुझे ये चेक करना है, अगर तुम एग्जाम में ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो ना, मैं तुम्हें ये बोलने वाला हूं कि फर्स्ट चेक व्हाट इज द फॉर्म ऑफ दिस लिमिट. इफ यू विल पुट द लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो हियर, है ना, so we are getting 0 by 0 form. If you are getting it form, then it's simple to use the L'Hopital rule. यूज द L'Hopital rule, है ना, इट्स द सिंपलेस्ट वे, है ना. अगर ये एक दो स्टेप में डिफरेंस, एक दो डिफरेंशिएशन के बाद फाइनाइट लिमिट तुम्हें मिल जाता है, देन इट्स ओके टू यूज द L'Hopital रूल. ये फंक्शन देख के ही मुझे लगता है कि अगर हम L'Hopital रूल को यूज करेंगे तो आराम से ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाएगा. देखो कैसे करेंगे, है ना. लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, डेरिवेटिव ऑफ on root of 2 by 2 plus x, that is 1 upon 2 into on root of 2 plus x minus 0 upon 1. So if we'll put the limit now, what you are getting? I am getting 1 by 2. 1 by 2 root 2 I am getting. So this is the answer. And this is one method we used to solve. You can use the solve the or evaluate to the limit, right? Okay. What is the second method? If I'll ask you to use the rationalization method to solve the limit or evaluate the limit, what you will do? रेशनलाइज हम कैसे करेंगे? ये तो एक मेथड हो गया मेरा, दैट इज L'Hopital रूल. अच्छा, रेशनलाइजेशन मेथड को हम कैसे यूज करेंगे? ये वाला मेथड जो है, ये मेथड को हम यूज कैसे करेंगे, है ना, मेथड टू. ठीक है, रेशनलाइजेशन कर लो उसको. एक्सटेंडिंग टू जीरो ऑन रूट ऑफ 2 प्लस एक्स माइनस रूट 2 इंटू ऑन रूट ऑफ 2 प्लस एक्स प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाय x इंटू ऑन रूट ऑफ 2 प्लस एक्स प्लस रूट 2, है ना. सो न्यूमरेटर व्हाट विल, न्यूमरेटर क्या बन जाएगा बेटा? इजी है कि नहीं? न्यूमरेटर क्या बन जाएगा? न्यूमरेटर मेरा हो जाएगा लिमिट. अच्छा, आंसर मिलेगा कि नहीं बोलो? मिल गया सबको रेशनलाइजेशन मेथड में. ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स इंटू ऑन रूट ऑफ 2 प्लस एक्स प्लस रूट 2. अच्छा, तो अभी ये बताओ मुझे, लिमिट पुट करने के बाद मुझे मिल रहा है क्या? यू आर गेटिंग 2 2 तो कैंसिल हो गया, एक्स एक्स भी कैंसिल हो गया, है ना. सो
आफ्टर पुटिंग द लिमिट आर यू गेटिंग 1/2 yes I am getting, है ना. सो जीरो पुट करेंगे तो ये हो जाएगा √2 + √2 दैट इज 2√2, 1/2√2, है ना. सो दिस इज द रेशनलाइजेशन मेथड वी कैन यूज टू सॉल्व द और इवैल्यूएट द लिमिट, राइट. So let's move to the next question here. Let's take 30 seconds for this questions and try to solve it. Here the limit is tending to infinity. X is tending to infinity. So how we can solve it? कैसे solve करेंगे? So मैं ऑप्शन तुम लोगों को दे देता हूं तुम्हें. ऑप्शन A is -5/2. ऑप्शन B is 5/2. ऑप्शन C is 5/4 and ऑप्शन D is -5/4. ठीक है. इसका आंसर बताओ मुझे क्या हो जाएगा. Let me know in the chat box what is the answer for this question. How we can solve it? Option D is correct. -5/4. Pranali is saying option D. Okay. Let's solve. Let's solve. ओके ये याद रखो कि कभी भी तुम्हें अगर एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी वाला फंडा है ना, अगर तुम्हें एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी जो है दिया है तो तुम्हें क्या करना है ना, लेट्स टेक x इज इक्वल टू 1/y, है ना. आज x इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी. अगर x इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो y किसको टेंड करेगा बेटा, जीरो को टेंड करेगा, है ना. सो आई कैन चेंज द वेरिएबल हियर बाय यूजिंग दिस सब्स्टिट्यूशंस. ओके. सो देखो मैं अगर लिमिट को चेंज कर लिया y टेंडिंग टू 0, सो इन प्लेस ऑफ x व्हाट आई विल सब्स्टिट्यूट 1/a, 1/y. सो लेट्स सी 1/y स्क्वायर on root of 1/y square minus 2/y minus 1 minus on root of 1/y square minus 7/y minus 3. ठीक है. एक काम करो ना तुम, एक काम करो, ये जो है दोनों अंडर में जो भी एक्सप्रेशन तुम्हें प्रेजेंट है उसका एलसीएम ले लो. जो भी तुम्हें दिया गया है ना उसका एलसीएम ले लो बेटा. अगर मैं एलसीएम ले लूं तो ये क्या हो जाएगा ना, लिमिट y टेंडिंग टू 0, एलसीएम क्या हो जाएगा y स्क्वायर, तो अनरूट भी है ना, तो अनरूट ऑफ y स्क्वायर इज y, है ना. तो ऐसे ही y रखो रहने दो. ठीक है. तो y स्क्वायर ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2y, ये हो जाएगा -y स्क्वायर. इज इट और नॉट क्लियर. सो ऊपर में न्यूमरेटर में अनरूट है. ठीक है. माइनस, ठीक है, माइनस इसका क्या हो जाएगा भाई ना, वाई स्क्वायर 1 अनरूट ऑफ 1 माइनस 7y माइनस 3y स्क्वायर, है ना. तो ये नीचे वाला जो पावर है वो अनरूट होके कट जाएगा. ठीक है. अभी कर सकते हो उसका. फिर इसका भी एलसीएम ले लो ना, लिमिट के अंदर जो भी है उसका भी एलसीएम ले लो. इसका अगर हम एलसीएम ले लेंगे, लिमिट y टेंडिंग टू 0, ये क्या हो जाएगा, y न्यूमरेटर में क्या है, अनरूट ऑफ देखो करेंगे, अगर हम 0 पुट कर लेंगे, 0 पुट कर लेंगे तो ये 0/0 फॉर्म भी दे रहा है ना. ये जो है ये लिमिट जो है ये 0/0 फॉर्म में है कि नहीं. अगर ये 0/0 टू 0, तो न्यूमरेटर में हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई करेंगे. क्या, √1 √1 न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे. तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग विथ न्यूमरेटर व्हाट यू आर गेटिंग, मुझे क्या मिलेगा ना, a + b इंटू a - b वाला फंडा है क्या है. तो ये हो जाएगा 1 - 2y - y स्क्वायर
माइनस 1 - 7y माइनस 3y² डिवाइडेड बाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में y इंटू अंडर रूट ऑफ 1 - 2y माइनस y² प्लस अंडर रूट ऑफ 1 - 7y माइनस 3y²। ठीक है, ये मिल जाएगा मुझे अभी। अच्छा, ये न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करो फिर। अगर हम न्यूमरेटर को भी सिंप्लीफाई करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, y टेंडिंग टू 0। अच्छा, 1 1 तो कैंसिल हो जाएगा, और -2y प्लस 7y, तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर में +5y और -y² प्लस 3y², तो माइनस +2y²। ठीक है, डिवाइडेड बाई y इंटू, नीचे क्या मिलेगा तुम्हें, y इंटू अंडर रूट ऑफ 1 - 2y माइनस y² प्लस अंडर रूट ऑफ 1 - 7y माइनस 3y²। ठीक है, ये मिलेगा। ओके, देखो, तो फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आई कैन कैंसिल y और नॉट, कॉमन ले जाऊंगा न्यूमरेटर से y को और डिनोमिनेटर से कैंसिल कर दूंगा। ठीक है, अभी लिमिट पुट करके देखो क्या मिल रहा है तुम्हें। नाउ पुट द लिमिट एंड सी व्हाट यू आर गेटिंग, व्हाट इज द आंसर यू आर गेटिंग। आर यू गेटिंग एनी फाइनाइट नंबर और नॉट? लेट्स सी। न्यूमरेटर बिकम्स, आफ्टर पुटिंग द लिमिट, न्यूमरेटर बिकम्स 5, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा ना, 1 0 0 ऑन रूट ऑफ 1 प्लस 1 0 0, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1, तो 1 + 1 दैट इज 2। सो यू आर गेटिंग व्हाट इज द आंसर, 5/2। दिस इज योर आंसर, 5/2। 5/2 इज योर आंसर। ठीक है, 5/2 विल बी योर आंसर, है कि नहीं? बोलो, क्लियर है कि नहीं? आ गया सबको समझ में? चैट बॉक्स में बताओ मुझे। प्रणाली, वेयर यू डिडंट अंडरस्टैंड, कैन यू टेल मी? देखो यहाँ पे हम लोग क्या किए, देखो एक बार बता देता हूँ तुम लोगों को। देखो, इसमें क्या किए ना, व्हेन एक यू आर हैविंग एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी वाला लिमिट होगा ना, उसमें क्या करना है तुम्हें, x इज इक्वल टू 1/y को सब्सटीट्यूट करो। ठीक है, अगर x इंफिनिटी को टेंड करेगा तो y क्या हो जाएगा, y भी तो 1/x होगा ना। तो अगर x इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, y क्या होगा, 1/∞, दैट इज 0। सो y इज ऑल्सो टेंडिंग टू 0। तो लिमिट को मैं चेंज कर दिया, y टेंडिंग टू 0, एंड इन प्लेस ऑफ x आई हैव सब्स्टिट्यूटेड हियर 1/y। ठीक है, तो 1/y लेने के बाद मुझे ये मिला, एक जहां जहां x है वहां पे तुम्हें 1/y को पुट कर लो। ठीक है, आफ्टर पुटिंग x इज इक्वल 1/y, व्हाट वी आर गेटिंग, दिस एक्सप्रेशंस वी आर गेटिंग, है ना। ये एलसीएम लेके मैं यहां तक पहुंच गए तुम। तो यहां से क्या करना है तुम्हें, रेशनलाइज करना है। न्यूमरेटर में क्या है, न्यूमरेटर में सपोज ये इसको मैं ले लिया अंडर रूट ऑफ a, इसको ले लिया अंडर रूट ऑफ b। ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ a माइनस b न्यूमरेटर में है, तो मैं न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर के साथ अंडर रूट ऑफ a प्लस अंडर रूट ऑफ b को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, समझ में आया अभी तक? यहां तक समझ में आ गया? आया, रेशनलाइज किया मैं। अगर ये वाला एक्सप्रेशन को मैं अंडर रूट ऑफ ए मान लिया, ये वाला एक्सप्रेशन को मैं अंडर रूट ऑफ बी मान लिया, तो मैं अगर इसको रेशनलाइज करना चाहूंगा तो क्या करूंगा, अंडर रूट ऑफ ए प्लस अंडर रूट ऑफ बी को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से मल्टीप्लाई करूंगा। सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग यू आर गेटिंग अंडर रूट ऑफ ए माइनस अंडर रूट ऑफ बी इंटू अंडर रूट ऑफ ए प्लस अंडर रूट ऑफ बी। तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा ना, अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ बी का स्क्वायर। ठीक है, तो वही सेम चीज में किया, है ना। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा क्या, 1 - 2y, अंडर रूट हट जाएगा ना आफ्टर टेकिंग द स्क्वायर। सो 1 - 2y माइनस y², यहां से मुझे क्या मिला, 1 - 7y माइनस 3y²। आया समझ में? और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो ये मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई होके न्यूमरेटर क्या हो गया तुम्हारा, 1 1 तो कैंसिल हो गया ना, 1 1 कैंसिल हो गया, तो ये -2y प्लस 7y क्या हो जाएगा, 5y, और प्लस y² माइनस 3y², माइनस y² प्लस 3y², दैट इज 2y²। ठीक है, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से दोनों में से y को मैं कैंसिल कर दिया और लिमिट को पुट किया, तो मुझे 5/2 मिल गया। इज इट क्लियर प्रणाली, इज इट क्लियर? बोलो, क्लियर है? यस और नो? क्लियर, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो एक मेथड हो गया, दूसरा कुछ मेथड है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं क्या? दूसरा कुछ मेथड है इसको,
अच्छा, लोपिटल रूल में बोल रहा था तुम लोगों को कि लोपिटल रूल यूज कर सकते हो, ठीक है, वो भी कर सकते हो। और क्या कर सकते हैं हम, और भी क्या कर सकते हैं? देखो यहां से तुम्हें जो मिला ना, देखो ये एक स्टेप तुम्हें मिला है, दैट इज 5। देखो और एक बार मैं लिख देता हूं यहाँ पे तुम्हें क्या मिला है, लिमिट, अच्छा, एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, जो भी दिया है क्वेश्चन छोड़ दो उसको। तो दूसरा मेथड अगर मैं बोलूं यूज करने के लिए, देखो ये जो क्वेश्चन में तुम्हें दिया है, ये इसमें तो लिमिट एक्सटेंड, डायरेक्ट यहीं से ही रेशनलाइज कर लो ना। मैं ये बोल रहा हूँ डायरेक्ट यहीं से रेशनलाइज भी करके कर सकते हो तुम। कैसे करेंगे, कैसे कर सकते हो, देखो डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं हम। ये क्वेश्चन को मैं ले लेता हूँ। ठीक, ओके, देखो, हाँ, अरे ये तो नहीं है, डॉट वेस्ट नहीं हो रहा। अच्छा ये देखो, अगर ये तुम्हारा है क्वेश्चन, तो मैं डायरेक्ट यहीं से भी रेशनलाइज कर सकता हूँ। कैसे, देखो, ऑन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 माइनस ऑन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 डिवाइडेड बाय ऑन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 माइनस 1 प्लस ऑन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, और यहां से भी मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 प्लस ऑन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, और न्यूमरेटर में जो भी है ना उसको मल्टीप्लाई कर लो अभी। तो मुझे क्या मिलेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 डिवाइडेड बाई न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 प्लस ऑन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, तो टू इंफिनिटी ये हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 7x, तो 5x, और ये माइनस वन प्लस 3, दैट इज प्लस 2 डिवाइडेड बाय ऑन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 प्लस ऑन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, अभी देखो ये क्या करो ना, जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर में डिवाइड डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विथ क्या, एक्स के साथ डिवाइड कर लो। अगर मैं एक्स के साथ डिवाइड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा क्या, 5 + 2/x, न्यूमरेटर बिकम्स 5 + 2/x, एंड डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर बिकम्स, अगर मैं एक्स को डिवाइड करूं, अगर मैं एक्स को डिवाइड करूं तो अंदर जाके रूट रूट के अंदर जाके वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा क्या, 1 - 2/x माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 1 - 7/x माइनस 3/x स्क्वायर। नाउ इफ विल पुट द लिमिट नाउ, तो अगर मैं लिमिट पुट करूं इसमें, अगर लिमिट पुट करूं तो ये क्या हो जाएगा ना, 2/इंफिनिटी, ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, है ना, और ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। देखो, so what is the answer you are getting, answer is very simple, that is 5/2, you are getting or not, yes or no? So there are many methods we can solve the questions by using the different methods. ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन करके मुझे बताओ व्हाट इज द आंसर, चैट बॉक्स में बताओ मुझे व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ध्यानेश्वरी, एम चोटालिया, प्रणाली,
व्हाट इज द आंसर? हाउ वी कैन सॉल्व इट? हाउ वी कैन सॉल्व इट? जल्दी से बताओ, ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं? तो मैं हिंट्स दे दूंगा तुम्हें और तुम खुद से सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये देखो, ये जो क्वेश्चन दिया है तुम्हें, एक्सटेंडिंग टू वन, अगर हम वन, पहले तो मैं ये तुम्हें बार बार बोला हूं कि कभी भी तुम्हें लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो पहले तो उसका फॉर्म चेक करना है। ठीक है, तो वन पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वन माइनस टू प्लस वन, तो 0/0 फॉर्म में है। तो अगर ये 0/0 फॉर्म में है तो इजीली मैं तो ये बोल सकता हूँ कि लोपिटर रूल यूज करके हम कर सकते हैं उसको। ठीक है, लोपिटर रूल तो एक यूज करके कर सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग इज, फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करके भी कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड को हम यूज कैसे कर सकते हैं? देखो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन, ये क्या है तुम्हारे पास, एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/3, सो एक्स टू द पावर 3/2 है, माइनस 2 इंटू एक्स टू द पावर 3/2, यस और नो, प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। देखो, तो ऊपर क्या है, ऊपर को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, एक्स टू द पावर 1/3, एक्स टू द पावर वन, अच्छा 2/3 होगा ना ये, सॉरी सॉरी, ये हो जाएगा तुम्हारा 2/3। ठीक है, तो ये मुझे बताओ, जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर, कैन इट बिकम एक्स टू द पावर एक्सटेंडिंग टू वन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन, एक्स टू द पावर 1/3 माइनस 1 होल स्क्वायर। देखो, इफ यू टेक द स्क्वायर ऑफ दिस, तो क्या मिलेगा तुम्हें, जो न्यूमरेटर में जो भी प्रेजेंट है दैट इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3 माइनस 1 होल स्क्वायर, और नीचे क्या है ना, एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, एक ये चीज तो तुम लोगों को पता है कि नहीं? तो और एक चीज मैं तुम लोगों को ये बता रहा हूं कि देखो, अगर अल्जेब्रिक आइडेंटिटी, तुम्हें एक चीज मैं बता रहा हूं, अल्जेब्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, तो वो आइडेंटिटी क्या है ना, ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब का स्क्वायर। ठीक है, उसको हम क्यूब का इंटू क्या होता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर इंटू, कर सकता हूं ना, सो 1 ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का होल, इसको हम यूज कर, ये वही 1/3जो ए है तुम्हारा क्या है, दैट इज एक्स टू दावर इंटू बी, एक्स टू दावर 1/3 इंटू 1, ये मिलेगा तुम्हें इसका स्क्वायर। अभी लिमिट पुट करके देखो क्या मिलेगा, नहीं, तो जो 1/,
अच्छा वो, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, एक्चुअली नेटवर्क का इशू था, नेटवर्क चला गया था, ठीक है, कोई नहीं। इज माई स्क्रीन विजिबल गाइस? बोलो। स्क्रीन विजिबल है कि नहीं चार्ट में बता दो मुझे, टाइम हो चुका है यार, क्या हो गया ये, थोड़ा वेट करो। स्क्रीन विजिबल है ना? एक्चुअली आई एम फेसिंग सम इंटरनेट इश्यूज विथ माय मोबाइल आल्सो। एक बार मुझे ये बता दो कि जो मेरा स्क्रीन है ना, दैट इज विजिबल टू यू ऑल और नॉट, यस और नो? यस। ओके ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई नहीं। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर समझ में आ गया सबको? बोलो जल्दी से। ये जो क्वेश्चन है ये समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है, चलो, कोई नहीं। अच्छा, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है, नोट कर लो, नोट कर लो सब लोग। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नोट कर लो सब। हम्म। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है, करके आना। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। अच्छा, अभी एक चीज तुम्हें मैं सिखाने वाला हूं, दैट इज बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन को यूज करके हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अच्छा ये बताओ मुझे, बाइनोमियल एक्सपांशन क्या होता है? 1 + x⁴n, हम उसको एक्सपांड कैसे करते हैं? एनीवन कैन से, हम उसको एक्सपांड कैसे करते हैं? कोई बता सकता है मुझे? व्हाट इज द एक्सपांशन? याद है कि नहीं ये बताओ मुझे। तो इसका जो एक्सपांशन होता है ना, दैट इज NC0 से स्टार्ट होता है कि नहीं? NC0 है ना, प्लस NC1 × x प्लस NC2 × x², ऐसे होता है ना। तो 1 + x² x⁴n की जो अप्रोक्सीमेशन होता है ना, जो एक्सपांशन होता है, दैट इज हम उसको ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, 1 + nx प्लस n × n−1 इंटू डिवाइडेड बाई 2 × x² एंड सो ऑन। ठीक है, सो व्हेन, इफ आई से, व्हेन x इज टेंडिंग टू 0 or x is very very small, if I'll say x is very very small, or we'll say x is tending to 0, right? तो ये जो टर्म्स आगे वाले, इन दोनों टर्म्स को छोड़ के आगे वाले जो टर्म्स आने वाले हैं वो क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। ठीक है, ये भी टेंडिंग टू 0। अगर x इज टेंडिंग टू 0, दैट मीन्स इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल नंबर। तो उसका अगर हम स्क्वायर ले लेंगे तो ये और भी छोटा हो जाएगा, इसका अगर हम क्यूब ले लेंगे तो और भी छोटा हो जाएगा, है ना। तो ये सारे जो टर्म्स हैं, आगे टर्म्स हैं, इनको मैं नेग्लिजिबल कर दिया और यहां तक लिया बस क्या, 1 + x⁴n को हम अप्रोक्सीमेटली 1 + nx यूज करेंगे हम लिमिट को इवेलुएट करने के लिए, व्हेन एक्सटेंडिंग टू 0 में बता रहा हूं तुम लोगों को। ठीक है, ओके, आया समझ में? क्लियर है कि नहीं? तो याद रखो, जो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन होता है, दैट इज 1 + x⁴n इज अप्रोक्सीमेटली 1 + nx व्हेन x इज टेंडिंग टू 0।
x इज वेरी वेरी स्मॉल। क्लियर? ओके, चलो ठीक है। अगर ये समझ में आ गया, फिर एक क्वेश्चन करके देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है देखो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, 7 प्लस एक्स टू द पावर 1/3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। लेकिन मुझे तो ये पता है यहाँ पे मैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन को यूज कैसे करूं। मुझे तो इतना ही पता है ना, 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस एन एक्स। ठीक है, मुझे ये चीज पता है। लेकिन ये यहाँ पे तो न्यूमरेटर में 7 प्लस एक्स है, मुझे तो ये चीज नहीं पता है। तो मैं कैसे करूं ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करूं? और एक चीज, और क्या मेथड हो सकता है? बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन तो एक मेथड है। एक तो मैं बोल दिया कि ये बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज करके ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और एक मेथड है, क्या है ना, पहले मैं बताया था तुम लोगों को कि फॉर्म चेक करो। फॉर्म अगर हम चेक करेंगे तो 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0/0 फॉर्म में आ जाएगा। ये भी 0/0 फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो यूज करते हैं फिर बाइनोमियल 0/0। अच्छा, मैं अगर लोपिटल रूल यूज करूं तो आराम से उसका आंसर आ जाएगा। अगर मैं अप्रोक्सीमेशन पूछूं तो मैं सेकेंड मेथड में करूं ये क्वेश्चन को, तो कैसे करें? तो कैसे करेंगे ना, एक्स को मैं बोल रहा हूं कि जो 7 है उसको मैं ट्राई करूंगा कि उसको मैं 1 पे कन्वर्ट कर दूं और उसको 1 प्लस एक्स टू द पावर समथिंग में ले आऊंगा तो ये हो जाएगा। तो मैं उसको ले लिया 1 प्लस एच, एक्स को मैं ले लिया 1 प्लस एच। सो व्हेन एक्सटेंडिंग टू 1, व्हेन x is tending to 1, तो h tending to, then h tending to, if x is equal to 1 plus h, तो h tending to 0। so limit h tending to 0, इसमें अगर मैं पुट करूं लिमिट एक्सटेंडिंग टू h tending to 0, 7 plus 1 plus h to the power 1/3 minus 2 divided by, in place of x I need to substitute 1 plus h minus 1। ठीक है, आया समझ में? है कि नहीं, ये भी बोलो। चलो ये बताओ मुझे, ये समझ में आ गया सबको? अच्छा, नाउ देखो, अगर मैं लिमिट h टेंडिंग टू 0, 7 प्लस h टू द पावर 1/3, दैट विल बी 8 प्लस h टू द पावर 1/3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय h हो जाएगा, है कि नहीं? तो अगर मैं ये जो 8 है ना उसको बाहर ले लूं, 8 प्लस h टू द पावर 1/3 से 8 को मैं बाहर ले लूंगा। ठीक है, अच्छा ये बताओ मुझे, 8 को अगर मैं बाहर ले लूं तो 8 क्या हो जाएगा, 8 टू द पावर 1/3 तो 2 आ जाएगा ना बाहर। सो लिमिट h टेंडिंग टू 0, बाहर 2 आ गया, ये हो जाएगा क्या, 1 प्लस h/8 टू द पावर 1/3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई h। आया समझ में अभी तक? यहां तक क्लियर है? इफ यस प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स एवरीवन। यहां तक अगर समझ में आ गया फिर बताओ मुझे चैट बॉक्स में। यहां तक सबको समझ में आ गया? जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। 2 को कैसे बाहर लिया ना, देखो 8 प्लस h टू द पावर 1/3 है, तो ये क्या है, 2 टू द पावर 3 प्लस h टू द पावर 1/3। तो 2 टू द पावर 3 को मैं बाहर ले लूंगा, तो 2 टू द पावर 3 1 प्लस h/8 टू द पावर होल टू द पावर 1/3। अभी 2 टू द पावर 1/3 को मैं अगर इसको 1/3 का पावर ले लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? आया समझ में कि नहीं? क्लियर है? तो 2 टू द पावर 3 बाहर जाके क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 3 टू द पावर 1/3 दैट इज 2। क्लियर? ओके, तो अगर ये यहां तक समझ में आ गया तुम, अभी तो आराम से हम बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन को यूज कर सकते हैं क्योंकि मुझे तो फॉर्म मिल गया। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू, अच्छा लिमिट अगर मैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज करूं तो मैं डायरेक्टली तो लिमिट ही पता कर लू ना। दिस इज एक्चुअली क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस एन एक्स। एन क्या है, 1/3, तो 1/3 इंटू एक्स क्या है ना, h/8। ठीक है, ओके, दिस -2 डिवाइडेड बाई h। क्लियर? तो h, अच्छा ये देखो 2 2 तो कैंसिल हो जाएगा ना, 2 प्लस h/24 है ना, h/24। अच्छा 2 भी है ना, 2 सपोज ये 2 2h/24 माइनस क्या हो जाएगा, 2
डिवाइडेड बाई एच, तो 2 तो कैंसिल हो गया, ठीक है, और एच एच भी कैंसिल हो जाएगा, सो 2/24 दैट इज 2/24, दैट इज 1/12, सो आंसर इज 1/12, क्लियर, आंसर इज 1/12, इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस, जल्दी बताओ मुझे, आंसर सबको समझ में आ गया, ये बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन को यूज करके मैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकता हूं, जल्दी बताओ, यस और नो, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं, पूछ लो, कोई भी डाउट है तो पूछ लो इसमें, क्लियर, जल्दी बताओ, चैट बॉक्स में बोलो, आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स, जल्दी बताओ, यस, ठीक है, ठीक, ओके, चलो, ठीक है, सो नेक्स्ट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी वाला क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ऑलरेडी हम लोग एक दो क्वेश्चन तो कर चुके हैं, तो लिमिट एक्सटेंडिंग, अच्छा ये तुम्हारे लिए होमवर्क क्वेश्चन में बाद में दे दूंगा, लिमिट व्हेन यू आर हैविंग लाइक दिस, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, तो ये सब सारे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, और एक केस आएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी, इन दोनों केसेस को हम सॉल्व कैसे करेंगे क्वेश्चन को, ना डायरेक्टली तुम्हें क्या करना है ना, कभी भी तुम्हें एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी दिखेगा ना, तो x इज इक्वल टू 1 बाई पुट कर लो, तो लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंड y टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, है ना, x इज इक्वल टू 1 बाई पुट करो और y टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, और इसमें क्या पुट करोगे ना, x इज इक्वल -1/y, ये याद रखना, जब भी तुम्हें लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी दिया होगा, तो तुम्हें क्या पुट करना है ना, x इज इक्वल -1/y, और लिमिट क्या हो जाएगा ना, लिमिट y टेंडिंग टू 0, ठीक है, लिमिट y टेंडिंग टू ये भी 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, याद रखो ये चीज, इतना याद रखो, और एक चीज इंपॉर्टेंट जो शॉर्टकट में बताने वाला हूं तुम लोगों को, डायरेक्टली तुम याद रख सकते हो यहां से, देखो, अगर न्यूमरेटर में तुम्हें एक पॉलिनोमियल दिया है और डिनोमिनेटर में भी कुछ पॉलिनोमियल दिया है तुम्हें, ठीक है, कुछ एक्सप्रेशन दिया है तुम्हें, है ना, न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल दिया है और डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल दिया है, एंड एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी दिया है तुम्हें, एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी दिया है, तो डायरेक्टली अगर ये एम, ठीक है, अगर जो ये जो एम है ना, ये एम इज इक्वल टू दिस एन हो जाएगा ना, तो तुम्हारा आंसर जो है, तो आंसर क्या हो जाएगा ना, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर m अपन कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n, a नॉट अपन b नॉट, राइट, सो व्हेन जो न्यूमरेटर का पावर है, डिग्री है m, इफ m इज लेस देन n होगा तो आंसर हो जाएगा 0, अगर m इज ग्रेटर देन n और a नॉट अपन b नॉट इज ग्रेटर देन 0, तो आंसर हो जाएगा इंफिनिटी, और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं ये चीज को, फास्ट एक एग्जाम्पल सपोज मैं ले रहा हूं, देखो एक एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, एक चीज मैं तुम्हें बता रहा हूं कि 3x² अपन 2x, अच्छा इसका लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट क्या हो जाएगा, कैसे निकालोगे, अरे भाई सिंपल से, तो इतना तो आइडिया आ रहा होगा ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, एक एक तो कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा ना, 3x/2, है ना, एंड व्हेन x इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो लिमिट क्या आ जाएगा ना, इंफिनिटी ही आएगा ना, इंफिनिटी के तरफ लिमिट जाएगा, व्हेन लिमिट इज टेंडिंग टू इंफिनिटी एंड योर फंक्शन इज 3x/2, तो लिमिट क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा, आया समझ में, ठीक है, तो इसमें देखो तुम 3/2, अच्छा न्यूमरेटर का पावर क्या था ना, 2 था, न्यूमरेटर में सबसे बड़ा पावर क्या था ना, 2 था, एंड डिनोमिनेटर में पावर क्या था ना, 1 था, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में x² था, डिनोमिनेटर में 2x था, है ना, तो न्यूमरेटर का जो पावर है, दैट इज x का पावर जो है ना, 2 इज ग्रेटर देन 1, तो देन लिमिट कहां टेंड करेगा ना, m व्हेन m इज टेंडिंग टू n, m इज ग्रेटर देन n, तो m क्या हो जाएगा ना, n हो जाएगा 1, m हो गया 2, n हो गया 1, तो m इज ग्रेटर देन n एंड a नॉट अपन b नॉट 3/2 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है,
सो देन वी कैन से डायरेक्टली द लिमिट, जो लिमिट है ना, लिमिट विल बी इंफिनिटी। लिमिट क्या हो जाएगा ना, इंफिनिटी हो जाएगा। ठीक है, लिमिट क्या हो जाएगा ना, इंफिनिटी हो जाएगा। सिमिलरली और एक एग्जांपल ले रहे हैं, ये केस तो मेरा हो गया, समझ में आ गया मुझे। ठीक है, और एक एग्जांपल ले सकते हैं हम, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी। और एक एग्जांपल में ले लिया, सपोज उसको चेंज कर लो ना, उसको न्यूमरेटर 2x अपन 3x पर ले लिया। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है ना, एम इज लेस देन, सेकेंड वाला केस एम इज लेस देन एन हो रहा है। तो डायरेक्टली वी कैन से, सी हियर, डायरेक्टली वी कैन से दिस लिमिट विल बी जीरो। हाउ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, एक्स एक्स तो कैंसिल हो गया, तो हो गया 2/3x। देखो डिनोमिनेटर में x है और x इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो 2/इंफिनिटी आ जाएगा, तो जीरो हो गया ना, लिमिट क्या हो गया, जीरो हो गया। आया समझ में, जीरो हो गया। व्हेन द हाईएस्ट पावर और द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो ये क्या हो जाएगा ना, जीरो हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ जीरो हो जाएगा। सिमिलरली और एक चीज बोला है, जो फर्स्ट वाला केस है, तुम बोल सकते हो, ऐसे ले सकते हो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, कुछ भी ले लो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, पावर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो 3x² 4x²। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं ना, x² को दोनों को कैंसिल करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, लिमिट मिलेगा 3/4, है ना। तो ये देखो, तो इसमें मैं छोटा छोटा एग्जांपल लो रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन में तुम्हें जो दिया होगा ना, वो शायद उसमें ये जो है क्वेश्चन को सॉल्व, सिंप्लीफायर, सॉल्व, लिमिट फाइंड आउट करने के लिए बहुत इजी हो जाता है, ये अगर चीज पता होगा तो, ये चीज अगर पता होगा तो लिमिट निकलना इजी हो जाता है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं, इवेलुएट लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी 2x - 1/x+1। ठीक है, 2x - 1, दो मेथड यूज करके कर सकते हैं हम। और क्या मेथड हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं ये बोलूं तुम्हें कि x को डिवाइड कर लो, अगर x को डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी 2 - 1/x डिवाइडेड बाई 1 + 1/x, तो ये जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा, तो 2/1 दैट इज 2, है ना। और शॉर्टकट यूज करके मैं ये बोल सकता हूँ, ये तो मेथड 1 हो गया मेरा, शॉर्टकट भी यूज करके मैं कर सकता हूँ। शॉर्टकट कैसे करूंगा ना, क्या दिया है, लिमिट 2x - 1/x+1 व्हेन एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी। देखो इसमें क्या दिया है ना, इसका पावर भी 1 है, इसका पावर भी 1, एक्स की पावर न्यूमरेटर में भी 1 है और डिनोमिनेटर में भी 1 है। इसका पावर क्या है ना 2, और डिनोमिनेटर में पावर क्या है ना 1, तो 2/1 दैट इज 1, 2, आंसर इज 2। क्लियर, इजीली मैं कर सकता हूँ। और भी और एक मेथड यूज कर सकते हैं हम ना, x इज इक्वल 1/y भी लेके कर सकते हैं, x इज इक्वल 1/y भी लेके कर सकते हैं हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व। आया समझ में, क्लियर है कि नहीं, बोलो बोलो, यहां तक क्लियर है, यस और नो। क्या हो रहा है भाई, बोलो जल्दी से बताओ, यहां तक क्लियर है सबको। एम छोटा लिया, जल्दी बताओ। प्रणाली, इज इट क्लियर, आ गया समझ में। ठीक है, नेक्स्ट, ये क्वेश्चन हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ये क्वेश्चन को हम शॉर्टकट यूज करके इसका आंसर बता सकता हूं मैं, इसका आंसर मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, बोलो। शॉर्टकट यूज करके हम डायरेक्टली इसका आंसर बोल सकते हैं 2/3, क्योंकि x² की जो ऊपर भी x² है और नीचे भी x² है, ऊपर में जो न्यूमरेटर में x² की कोफिशिएंट है,
दैट इज 2 एंड डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर की जो कोफिशिएंट दैट इज 3। तो आंसर क्या हो गया ना 2/3। ठीक है। अच्छा, मेथड टू सॉल्व इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी एंड जीरो जीरो इंटू इंफिनिटी, ये इस टाइप का अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन मिलेगा जो लिमिट इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी और जीरो इंटू इंफिनिटी के केस में होगा, तो वो वाले क्वेश्चन को तुम सॉल्व कैसे करोगे? बोलो, वो वाला क्वेश्चन को तुम सॉल्व कैसे करोगे ना? फर्स्ट स्टेप इज स्टेप 1, कन्वर्ट टू जीरो बाई और इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म, देन यूज फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजेशन और लोपिटल रूल टू यूज दिस क्वेश्चन। पहले तो मुझे क्या करना है ना, अगर तुम्हें इस टाइप का फॉर्म मिलेगा इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी जीरो इंटू इंफिनिटी वाला क्वेश्चन, तो उसमें क्या करना है ना, पहले तो तुम्हें कन्वर्ट कर लो, ये जो फॉर्म है ये फॉर्म को ही कन्वर्ट कर लो जीरो बाई जीरो एंड इंफिनिटी और इंफिनिटी बाई इंफिनिटी के फॉर्म में। स्टेप 2 में क्या करो ना, जब भी तुम्हें जीरो बाई जीरो फॉर्म और इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म में क्वेश्चन मिल गया, तो आराम से तुम वो क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन और रेशनलाइजेशन और लोपिटल रूल यूज करके कर सकते हो आराम से। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन करते हैं। फिर ये क्वेश्चन दिया है तुम्हें, तो ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे? लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी अंडर रूट ऑफ 25x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5x, ये क्वेश्चन को तुम सॉल्व कैसे करोगे? बोलो, व्हाट इज द आइडिया टू, व्हाट इज द अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? कितने मेथड्स तुम्हें पता है? कितने मेथड्स हम यूज कर सकते हैं? पहले तो फर्स्ट मेथड तुम्हें ये बोलने वाला हूं कि जो दिया है तुम्हें, मुझे तो पता है ना, जब भी तुम्हें एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी मिलेगा तो x इज इक्वल 1/y को सब्स्टिट्यूट करके कर सकते हैं, हम आराम से कर सकते हैं क्वेश्चन को, है कि नहीं? और दूसरा मेथड क्या है ना, रेशनलाइजेशन मेथड। मेथड 2 क्या हो जाएगा ना, रेशनलाइजेशन मेथड यूज करके कर सकते हैं, रेशनलाइजेशन को भी यूज करके कर सकते हैं। ठीक है, तो x इज इक्वल 1/y अगर हम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट y टेंडिंग टू जीरो, ये हो जाएगा क्या ना 25 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 3 अपॉन वाई माइनस 5 अपॉन वाई। ठीक है, ओके, तो इसमें है अंडर रूट। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे फिर? ये अगर मिल गया, अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा ना, लिमिट y टेंडिंग टू जीरो, एलसीएम हो जाएगा मेरा क्या, इसमें हो जाएगा y स्क्वायर और नीचे ऊपर हो जाएगा 25 माइनस 3y और ऊपर क्या आ जाएगा ना 5 माइनस 5y। ठीक है, अच्छा पहले तो इसको कर लो। ठीक है, माइनस 5/y। ठीक है, तो ये अगर फिर से सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स y टेंडिंग टू जीरो, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 3y ऑन रूट ऑफ 25 माइनस 3y डिवाइडेड बाई y माइनस 5/y। ठीक है, इसका आराम से हम कर सकते हैं ना, y ऑन रूट ऑफ 25 माइनस 3y माइनस 5 लिमिट y टेंडिंग टू जीरो। तो नाउ यहां तक अगर तुम पहुंच गए ना आराम से, तुम्हें यहां से देखो y अगर मैं जीरो पुट करूंगा ना, y अगर मैं जीरो पुट करूंगा तो मुझे मिलेगा 0/0 फॉर्म। अगर मुझे 0/0 फॉर्म मिल रहा है ना, तो आराम से मैं रेशनलाइजेशन यूज कर सकता हूँ, लोपिटल रूल यूज कर सकता हूँ, है ना, रेशनलाइजेशन को भी यूज कर सकता हूँ और बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज करके भी ये क्वेश्चन को कर सकता हूँ। ठीक है, ये तीनों मेथड को यूज करके मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। नहीं तो पहले से ही तुम्हें क्या करना है, पहले से ही मैं क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ रेशनलाइजेशन यूज करके। कैसे? लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी ऑन रूट ऑफ 25x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5x इंटू ऑन रूट ऑफ 25x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5x, जो इसको ना रेशनलाइज कर लिया, तो ये हो जाएगा 25x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5x। ठीक है, इस टाइप से भी तुम कर सकते हो आराम से, ये क्वेश्चन को भी तुम कर सकते हो। तो दो मेथड में तुम लोगों को बता दिया।
तो आराम से कर सकते हो तुम। ये क्वेश्चन को कर सकते हो कि नहीं, बताओ मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बोलो, यस और नो। नाउ यू कैन सॉल्व इट और नॉट, बोलो। ये जो क्वेश्चन तुम्हें मिला, ये क्वेश्चन को तुम आराम से सॉल्व कर सकते हो कि नहीं, है ना। तो देखो दो मेथड क्या है ना, जब भी तुम्हें एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी मिल जाए तो एक्स इज इक्वल 1/y पुट कर लो। और सेकेंड मेथड क्या है ना, रेशनलाइजेशन, डायरेक्ट रेशनलाइजेशन। देखो रेशनलाइजेशन से बहुत ही इजी से हो जाएगा। कैसे, दोनों मेथड इजी है ना। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, न्यूमरेटर बिकम्स 25x² माइनस 3x माइनस 25x², ठीक है। डिवाइडेड बाई, न्यूमरेटर तो सिंप्लीफाई हो ही गया, डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 25x² माइनस 3x प्लस 5x। देखो कितना आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो 25x² तो कैंसिल हो गया। तो कैंसिल होने के बाद मुझे न्यूमरेटर में क्या बचा है मेरे पास ना, माइनस ऑफ 3x। अच्छा, माइनस ऑफ 3x, अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में, देखो यहां से तुम्हें क्या मिल गया बेटा, देखो यहां से तुम्हें मिला, अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी मुझे क्या मिलेगा, माइनस ऑफ 3x डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 25x² माइनस 3x प्लस 5x, ठीक है। तो x का जो कोफिशिएंट देखो, न्यूमरेटर में क्या है तुम्हारे पास, माइनस ऑफ 3x है। डिनोमिनेटर में क्या है ना, अंडर रूट ऑफ 25x² माइनस 3x प्लस 5x, ठीक है। तो ये लिमिट जो है ना, शॉर्टकट यूज करके भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो न्यूमरेटर में तुम्हारा जो पावर है दैट इज 1, डिनोमिनेटर में भी पावर जो है ये 2 है, और उसका क्या है, स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर रूट लेने के बाद x हो जाएगा। तो x का कोफिशिएंट तुम्हें क्या मिला यहाँ पे ना, मुझे मिलेगा शॉर्टकट यूज करके -3, न्यूमरेटर का कोफिशिएंट -3 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में x का कोफिशिएंट क्या मिला ना, एक तो है x का कोफिशिएंट दैट इज 25 का अंडर रूट 5 प्लस यहाँ पे एक और एक मिलेगा दैट इज 5। सो ये हो जाएगा -3/10, आंसर हो जाएगा -3/10। क्लियर, आंसर क्या हो जाएगा, -3/10। क्लियर एवरीवन, इफ यस प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो फिर। क्लियर है, इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस, यस और नो। चलो ठीक है, गुड गुड। ओके, ये जो क्वेश्चन है ना, टेक दिस क्वेश्चन एज योर होमवर्क क्वेश्चन, है ना। तो पहले से दो क्वेश्चन ऑलरेडी तुम्हें दे चुका हूं होमवर्क, है ना। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको होमवर्क ले लो, टेक ए स्क्रीनशॉट और यू कैन नोट इट डाउन ऑल्सो, इसको नोट भी कर सकते हो तुम, राइट। क्लियर, ठीक है। और नेक्स्ट 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 इज ये भी, ये पीओक्यू है, ठीक है। ये भी होमवर्क है तुम्हारे लिए, ये भी होमवर्क क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, ओके। सो चार क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास टुमारो आई विल आस्क यू ऑल दिस क्वेश्चंस एंड प्लीज कम कम टू द क्लास विथ योर आंसर, ठीक है। हो गया, अच्छा चलो। सो नेक्स्ट क्लास में और भी जो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, वो सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग कवर कर देंगे। और सैटरडे में ट्राई करेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो भी है लिमिट का पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। और संडे में क्या करेंगे ना, अगर कल हम कंटिन्यूटी का क्लास कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और उसका जो थ्योरी है, अगर कंटिन्यूटी का थ्योरी कल का क्लास में अगर हमारा कंप्लीट हो जाता है, तो संडे में उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, ठीक है। थोड़ा रिवाइज हो जाएगा अगर, तो नहीं तो फिर अगर नहीं होगा, कंटिन्यूटी का कंप्लीट नहीं होगा, तो सैटरडे में उसका पीआईक्यू लिमिट का पीआईक्यू करने वाले हैं। और संडे में हम लिमिट का जो भी जितने भी पोर्शन लिमिट का कवर किए होंगे, वो सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर जो भी पीआईक्यू हमें मिलेगा, वो सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।